Good evening, class. Chinmay, Yes, ma'am. audible? Yes, ma'am. Okay. Chinmay, tell me the difference between brown algae and red algae with respect to their cell wall. Ma'am, with respect to the Cell wall. ma'am, in brown algae, the cell wall is made up of cellulose, pectin, and sulfate esters. And in green algae, it is made up of only cellulose. Okay, right. And brown algae? Brown algine, extra is algine, with and cellulose. Okay. Kaushik? Kaushik, what is the difference between brown algae and red algae with respect to their gametes? Gamete. Brown. With respect to their gametes. Kaushik. Yes, Nitishri. Ma'am, red algae doesn't produce motile sperms. Sperm या gamete? Organ. ठीक है, आगे. और brown algae produce motile sperms. Okay. Ritesh. Yes, ma'am. The brown and red algae difference with respect to their spores. स्पोर्स के बेसिस पे क्या डिफरेंस होगा? Yes, Abhiksha. Ma'am, red algae spores are non-motile, whereas in brown algae spores are motile. That means which type of spores are never found in red algae? कौन से स्पोर कभी नहीं मिलेंगे? एलिमिनेट होगा ऑप्शन से. मतलब अगर तुमको मिलेगा ऑप्शन कभी which of the following spores are not found in the group Rhodophyceae, ठीक है? तो ऑप्शन होगा तुम्हारा एप्लानोस्पोर, हिप्नोस्पोर, जूस्पोर. तो कौन सा स्पोर नहीं होगा? Non-motile zoospore. हाँ, right. So they will never have zoospores. Shrimugda? Shrimugda? Yes, ma'am. Okay, what is the chemical nature of algin? Ma'am, once again I can hear. Shrimugda, your voice is very feeble. बहुत धीमे आवाज आ रही है. What is the biochemical nature of algin? Algin का biomolecular क्या composition होता है? Okay, Vibhav. Cellulosic होता है. Sure. No, ma'am. Wait a second. No, ma'am. नहीं, चलो कोई नहीं. Yes, Shibangi.
चलो यस चिन्मय। मैम प्रोटीन। प्रोटीन नहीं, Yes, प्रोटीन ma'am. नहीं होता। नहीं चिन्मय, इट्स नॉट अ प्रोटीन। यस अभिप्सा। Ma'am, carbohydrates. It's a carbohydrate. And what is the nature of the carbohydrate? Ma'am, for it, Huh? the cellulosic carbohydrate, that is complex sugar. It's a hypocolloid या hydrocolloid. Yeah, Vibhav, your answer was correct. So it's a hydrocolloid. So that is its chemical nature. ठीक है, colloidal solution बनाता है. So we started with algae yesterday. तुमको मैंने इसका property बताया था, spores की बात किया था हमने, reproduction methods की बात किया था. So is there any doubt in algae? Spores का नाम या कुछ कोई doubt है? Have you gone through the unit once again? Obviously that will be seen, आगे questions discuss होंगे तो. चलो, तो एल्गी में हमको बेसिकली 3 टाइप के ट्रू एल्गी पढ़ने हैं. सी व्हाई आई एम सेइंग ट्रू एल्गी, क्योंकि तुमने प्रोटिस्टा में भी देखा था, यू हैव गोल्डन एल्गी. ठीक है, गोल्डन एल्गी डेस्मेट जो होते हैं उनको ज़ेंथोफाइसी कहते हैं. इनफैक्ट कई बुक्स में डाइनोफ्लैजिलेट्स को डाइनोफाइसी भी लिखा जाता है. ठीक है, तो दोज आर नॉट ट्रू एल्गी, क्योंकि एल्गी वो हैं जो तुम्हारे प्लांट किंगडम में प्लेस किए गए हैं. दे आर फोटोसिंथेटिक, दे हैव क्लोरोफिल ए. तो दोज आर योर एल्गी, ट्रू एल्गी जो प्लांट्स में आते हैं. तो हमको वो क्लासेस को नहीं फॉलो करना है. वी हैव टू फॉलो 3 क्लासिफिकेशन, दैट इज योर रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी एंड ग्रीन एल्गी. तो तुमने एक काम अच्छे से कर लिया होगा कि जो इनका सिंपल कंपैरिजन था, जैसे क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी. सिंपल कंपैरिजन मींस डिफरेंस बेस्ड ऑन पिगमेंट, स्टोर्ड फूड एंड सेल वॉल. ये 3 कॉमन कैरेक्टर्स हैं, ये तुमको खुद ही करना चाहिए. जो इंटरनल है दैट इज द एक्सक्लूसिव फीचर, वो अभी मैं बताऊंगी. तो क्लोरोफाइसी में योर पिगमेंट इज क्लोरोफिल ए एंड बी. रोडोफाइसी में क्लोरोफिल ए, डी एंड along with this they have phycoerythrin. Right, we discussed it yesterday. Erythro word is for red. ठीक है, erythrocyte are your RBCs. Phaeophyce में chlorophyll A, C and fucoxanthin. So xanthin is a type of carotenoid. बात हुआ था हमारा, क्रोमोप्लास्ट में होते हैं प्लांट्स के. And we also discussed the function of different pigments. Function क्या था कि अलग अलग वेवलेंथ की लाइट अलग अलग सेंसिटिविटी से अब्सॉर्ब करते हैं. Then they accumulate या assimilate that part of sunlight, फिर उसको पास ऑन करेंगे क्लोरोफिल को, जिससे वो तुम्हारा फोटोसिंथेसिस कर सकता है. स्टोर्ड फूड की बात करोगे तो क्लोरोफाइसी हैज सिंपल स्टार्च, रोडोफाइसी हैज योर फ्लोरिडियन स्टार्च which resembles the amylopectin chain of the starch molecule. Starch 2 molecule का बना ना, amylose और amylopectin. So Floridian starch resembles amylopectin. Now brown algae has laminarin and mannitol. ये दोनों भी starch ही होते हैं. The difference is mannitol has an additional hydroxyl group, ठीक है, and laminarin has certain other branching pattern. हैं ये सारे के सारे स्टार्च, ये सब पॉलीसेकेराइड्स ही होते हैं. नाउ सेल वॉल की बात करो तो ग्रीन एल्गी ओनली हैज सेल्यूलोज या पेक्टिन होता है उसमें, है ना, डिपेंडिंग की अगर उसमें सेल्स हैं कोरेनकाइमेटस वगैरह, तो सेल्यूलोज, पेक्टिन, कभी कभी हेमी सेल्यूलोज, मैनोज, ये भी शुगर्स आ जाती हैं. रेड एल्गी में यू विल हैव सेल्यूलोज, और सेल्यूलोज के बाहर यू विल हैव एन एडिशनल लेयर of a hydrocolloid, जो कि अगेन एक शुगर ही होता है, which is called as carrageen. ठीक. ब्राउन एल्गी में अगेन you will have cellulose along with this a different type of hydrocolloid algae. तो ये सबको क्लियर है? हाँ आशुतोष, आशुतोष. Yes, ma'am. आशुतोष, हाँ ना बोलो. Yes, ma'am. Okay. चलो. Now taking each group individually. First is your like chlorophyce. ठीक. Green algae.
नाउ कमिंग टू इट्स एक्सक्लूसिव, जो इसके यूनिक प्रॉपर्टीज हैं, द फर्स्ट इज द प्रेजेंस ऑफ पायरिनॉइड। ठीक, इनमें जो फूड रिजर्व करना होता है, देखो एक तो इनका बॉडी एकदम सिंपलर ऑर्गेनाइजेशन का है, तो दे डोंट हैव लीव्स और कुछ स्टोरेज स्ट्रक्चर्स नहीं बनाते हैं, तो इनके हर सेल में दे हैव स्ट्रक्चर्स लाइक दीज आर योर पायरिनॉइड्स। पायरिनॉइड्स बने होते हैं स्टार्च प्लस प्रोटीन, एंड दिस इज ओनली प्रेजेंट इन ग्रीन एल्गी। तो ये क्या करते हैं, प्रोटीन का सेंट्रल कोर होता है, उसके अराउंड इन्होंने जो स्टार्च बनाया है उसकी शीट बना के ये कवर कर देते हैं। तो पायरिनॉइड्स आर अ प्रॉपर्टी ऑफ योर ग्रीन एल्गी। देन वी हैव क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट इनमें अलग अलग शेप का मिलता है। ठीक है, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, जैसे तुम्हारा एक फिलामेंटस क्लोरोप्लास्ट होता है, and then they have cup shape, reticulate, discoid, different type of chloroplast. ठीक है, now next is talking about their reproduction. रिप्रोडक्शन तुम्हें यूजुअली एसेक्सुअली होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन छोड़ दो, स्पायरोगायरा तुमको पता है ना, स्पायरोगायरा में तुम्हारा वो क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तुम्हारा होगा बाय स्पोर्स एंड यूजुअली फ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स। तो ये याद रखना, तीनों ग्रुप जो है तुम्हारे ग्रीन, रेड और ब्राउन, तीनों के स्पोर्स का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो इन डिटेल दिया हुआ है। तो जैसे ज़ूस्पोर्स हैं, यहाँ पे ज़ूस्पोर्स तुम्हारे कैसे हैं, बाइफ्लैजिलेट हैं, सब में तुमको मिलेगा बाइफ्लैजिलेट, फ्लैजिलेट। ठीक है, एंड द टू फ्लैजिला दे आर इक्वल इन लेंथ। कुछ केसेस में तुमको मोर देन 2 फ्लैजिला मिलता है, तो 2 to 8 इक्वल ओके नंबर ऑफ फ्लैजिला आर सीन। देन टॉकिंग अबाउट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों मेथड से हो सकता है, दैट इज योर आइसो, एनाइसो एंड oogamous। ठीक है, नाउ अब ये क्वेश्चन आया तुम्हारा एक स्पायरोगायरा के रिस्पेक्ट में। क्लेमाइडोमोनास इज अ स्पीशीज, क्लेमाइडोमोनास में तुम्हारा आइसोगैमी भी होता है और आइसो भी होता है। क्लेमाइडोमोनास इज अ यूनिक केस जिसके कुछ स्पीशीज में, स्ट्रेन्स में आइसो होता है, कुछ में एनाइसो होता है। मार्क 1 पॉइंट, स्पायरोगायरा। स्पायरोगायरा यूजुअली जो ग्रीन एल्गी हैं उनके जो गैमीट्स होते हैं दे आर यूजुअली फ्लैजिलेटेड, बट in case of Spirogyra they are non-flagellated. So Spirogyra में the gametes are non-motile and similar in size. ठीक है, तो सॉरी यहाँ नहीं है, आइसोगैमी ही है, but they are non-flagellated. Spirogyra का क्वेश्चन 5-6 साल पहले आई थिंक आया था, तो उसमें पूछा था, तो it has non-flagellated gametes. बाकी क्लेमाइडोमोनास में you will see flagellated, उसमें एनाइसो भी होता है। oogamous की बात करोगे तो जो थोड़े एडवांस ग्रीन एल्गी होते हैं, जैसे वॉलवॉक्स हो गया, सॉरी नॉट फ्यूकस, वॉलवॉक्स हो गया, यूलोथ्रिक्स हो गया, दे शो oogamous टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, चले, नाउ कमिंग टू ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी का पहले तो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखो, अभी तक इनमें रूट स्टेम लीफ नहीं आया, बट अगर तुम इनका स्ट्रक्चर देखोगे दे शो रिजेम्बलेंस विद योर प्लांट। जो थोड़े प्लांट्स ब्रायोफाइट वगैरह ऊपर आए हैं उनसे थोड़ा सिमिलैरिटी दिखाते हैं। फॉर होल्डिंग दे हैव अ होल्ड फास्ट, दे हैव अ स्टॉक, जैसे स्टेम होती है विच इज कॉल्ड अ स्टाइप, और एक फोटोसिंथेटिक इनके पास एक फ्रॉन्ड है। तो अभी भी तुम्हारा ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं आया, लेकिन दे आर शोइंग एवोल्यूशन। ये फ्रॉन्ड इनका लीफ जैसा होता है, फोटोसिंथेटिक ऑर्गन होता है। सम ब्राउन एल्गी हैव एयर ब्लैडर। हाँ बिप्शा, एयर ब्लैडर क्या होता है? मैम एयर ब्लैडर फॉर बैलेंसिंग।
For balancing हाँ inside the water. हाँ, तो फिर हाँ इनसाइड द वाटर, चलो लाइन तुमने ऐड कर दिया। तो जैसे फ्यूकस हो गया, डिक्टियोटा हो गया, उनमें तुमको ये तो सिंपल मैंने बनाया, दिस इज लैमिनेरिया। थोड़ा सा और वाले लोगे तो उनका तुमको स्ट्रक्चर काफी हद तक प्लांट जैसा दिखेगा, ठीक है। में तुमको उनमें ब्रांचिंग वगैरह भी दिखेगी। डिक्टियोटा में तुमको डाइकोटोमस ब्रांचिंग दिखती है, दो ब्रांचेस निकलती हैं। तो पहला स्टार पॉइंट, दे हैव एयर ब्लैडर फॉर मेंटेनिंग बायंसी या फ्लोटिंग के लिए उनके अंदर काम आता है, ठीक है। नाउ फर्स्ट इज दिस। सेकंड, इनका जो वैक्यूल होता है दैट इज सेंट्रली लोकेटेड एंड लार्जर इन साइज एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द टू ग्रुप। सो दे हैव अ सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल, ठीक है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन छोड़ो, हम आते हैं सेक्सुअल एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Again zoospore, again दो flagella, but here the difference is the flagella are unequal in length. Unequal होते हैं और उनका position क्या होता है, lateral attachment. Green algae में if I have not mentioned कर लेना, वहां पे तुम्हारा apical attachment होता है। वहां पे अगर ऐसे स्पोर हैं तो flagella यहाँ अटैच होते हैं apex में, यहाँ flagella lateral sideways attachment होती है। So they are attached laterally and they are unequal in length. Very important, the characteristic of spores. Now coming to the sexual reproduction, again तुम्हारा तीनों हो सकता है, iso, aniso, oogamy, ठीक है। Now they have a developed oogonium. Green algae में तुमको oogonium नाम का ऐसा डिटेल स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा। जो इनमें oogamous रिप्रोडक्शन होती है ना, वहाँ पे तुमको एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको ओगोनियम कहते हैं। अब इनके जो गैमीट्स होते हैं, गैमीट्स आर अगेन, अच्छा स्पोर और गैमीट एक जैसे ही लगते हैं इनके देखने में, पियर शेप, ठीक। गैमीट्स भी तुम्हारे इनमें दे आर पियर शेप, अगेन टू लेटरली अटैच्ड फ्लैजिला, ठीक है। So ectocarpus, Dictyota, Laminaria, Sargassum, Fucus, these are the examples of brown algae. अब इसमें जो Sargassum है, Sargassum को हम सीवीड कहते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा ग्रोथ होती है और इनफैक्ट ओशियन में या सी में जहाँ पे ये होते हैं पूरा का पूरा कवर करते हैं, इतना बड़ा नेटवर्क बनाते हैं कि कई बार उसमें शिप वगैरह भी फंस सकती है, बोट या शिप जो जाती हैं, दे कैन बी एंटैंगल्ड इन देम। सो दीज आर कॉल्ड एज सीवीड, कॉमन नाम होता है इनका कैल्प, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थर्ड ग्रुप दैट इज योर रेड एल्गी। रेड एल्गी में बाकी बहुत कुछ यूनिक है। पहला इनका अगर तुम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखोगे बहुत ज्यादा रिजेंबल करता है ये तुम्हारा एक हायर प्लांट की तरह। इनफैक्ट पॉलीसिफोनिया का अगर स्ट्रक्चर देखो तो पॉलीसिफोनिया में तुमको ऐसी छोटी 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 लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, ठीक है, विच इज रिप्रेजेंटेड ओनली इन अ टिपिकल प्लांट। तो ये प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये तुमको एकदम पतला सा स्टॉक जैसा दिखेगा, कोई वेसल नहीं है, कुछ नहीं है, बट इफ यू कैन सी इट इन डिटेल इट विल लुक लाइक अ प्लांट। सो दे हैव अ मेन एक्सिस, देन उसकी ब्रांचेस होती हैं। इनफैक्ट इनका जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है दैट इज वेरी मच इवॉल्व। अभी आते हैं उस पे, ओके। चलो नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन। पहला asexual reproduction, mark it as a star point, is always by non-motile spores. तो इनकी बॉडी में कभी भी तुमको जू स्पोर नहीं मिलेगा, बाकी दोनों ग्रुप्स में जू स्पोर्स थे, दे कैन नेवर रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, ठीक है। और दूसरा यूनिक चीज ये है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है oogamy से, ठीक है। वही oogamous तुमने क्या पढ़ा था कि एक बड़ा सा फीमेल गैमीट होता है, देन वी हैव अ मेल गैमीट व्हिच इज यूजुअली मोटाइल, हम ऐसा पढ़ते हैं, बट देयर इज अ डिफरेंट केस हियर। यहाँ पे तुम्हारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oogamous होगा, बट द गैमीट्स आर नॉन मोटाइल, गैमीट्स भी तुम्हारे नॉन मोटाइल होंगे। तो जो हम हमेशा पढ़ते हैं कि मेल गैमीट मोटाइल होता है, दिस इज एन एक्सेप्शन। यहाँ पे तुम्हारा मेल गैमीट इज नॉट मोटाइल, ये याद रखना, स्टार पॉइंट। हम इसके लिए बोलते हैं मोस्ट
द मेल गैमीट इज मोटाइल। इस केस में नहीं है, इसमें ना स्पोर्स मोटाइल होंगे ना गैमीट मोटाइल होंगे, ठीक है। रिप्रोडक्शन देखोगे, दे हैव कार्पोगोनियम। तो जैसे हायर प्लांट्स में तुम्हारे पास कार्पेल होता है, तो कार्पेल अभी तक नहीं आया, बट इनका जो बॉडी होता है, जैसे अगर पॉलीसिफोनिया का ये हमने बनाया था, द बॉडी हैज अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं कार्पोगोनियम। इस कार्पोगोनियम में तुम्हारा बनता है व्हाट, फीमेल गैमीट, ठीक। इट ऑल्सो हैज अ एंथ्रीडियम टाइप स्ट्रक्चर होता है, दैट एंथ्रीडियम हाउसेस द मेल गैमीट, एंथ्रीडियम ना, ठीक है। तो इनमें तुमको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजेशन या कॉम्प्लेक्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट देखने को मिलती है। तो इसीलिए रेड एल्गी सबसे नियरेस्ट रखे गए हैं विद ब्रायोफाइटा, इनके बाद क्योंकि ट्रू प्लांट जैसे कैरेक्टरिस्टिक आएंगे। तो अभी बताओ, इसमें कोई डाउट है? गो थ्रू इट वंस। कोई डाउट है इसमें भी? हाँ विभव, मैम हेलो, कोई डाउट है? नहीं मैम नहीं। नहीं। हाँ श्रीमुग्धा, कोई डाउट है? नो मैम। चलो, to the second division, that is your ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा में जो जो एडवांसमेंट हुआ है, पहला इनमें एम्ब्रियो स्टेज आ जाएगी, एल्गी में नहीं था ना। इनके जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे, मतलब एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम, दे आर जैकेटेड, ठीक है। जैकेटेड मतलब एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है, क्योंकि ब्रायोफाइट पहले प्लांट हैं जिन्होंने एक वाटर को पूरा तरह छोड़ दिया, मतलब पूरा तरह मतलब दे हैव माइग्रेटेड टू लैंड। इनको हम एम्फीबियंस कहते हैं ना प्लांट किंगडम का। तो दे हैव माइग्रेटेड टू लैंड बट स्टिल दे डिपेंड ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इन्होंने अपने सेक्स ऑर्गन्स को, एंथ्रीडियम और आर्किगोनियम को जैकेटेड बनाया। जैकेटेड मतलब दे विल हैव अ लेयर ऑफ सेल्स व्हिच विल बी प्रोटेक्टिंग द गैमीट फॉर्मिंग इंटरनल पार्ट। तो ऐसा होता है, तो इसको हम जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स कहते हैं, राइट। एल्गी में ऐसा नहीं था। ओके, अभी इनमें रूट स्टेम लीफ नहीं आया है, बट दे हैव रूट लाइक, स्टेम लाइक, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। सिमिलैरिटी देखोगे, अभी इनमें कोई वैस्कुलर टिश्यूज नहीं बने हैं, कोई फ्लोरल पार्ट नहीं है, अभी भी ये क्रिप्टोगैम ही है तुम्हारा, ठीक है। दे स्टिल डिपेंड ऑन वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, तो इन वजह से दे आर स्टिल क्लोज टू एल्गी। अब ब्रायोफाइट में तुम्हारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज अ न्यू कंसेप्ट ऑफ ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। ये इस टॉपिक का सबसे की पॉइंट है। ये ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन यहाँ से शुरू होगा और हायर प्लांट तक जाएगा। हायर प्लांट में जब तुम इनफैक्ट 12th का जो टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट, वहां पे भी ये टॉपिक कैरी ऑन होता है। तो नित्यश्री, कुड यू डिफाइन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन फॉर मी, होता क्या है? यस नित्यश्री। Ma'am, यस नित्यश्री। yes, ma'am. Ma'am, I didn't listen. What's the question? Sure. Nityashri, what is alternation of generation? What do you understand by the term? Alternation of genera. हाँ, generation. Metagenesis, ma'am. हाँ ठीक है, तो मेटाजेनेसिस क्या है नित्यश्री? होता Ma'am, क्या है? एक टाइप का लाइफ साइकिल। हाँ, जिसमें क्या होता है? मतलब उसमें मतलब हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्टेजेस होता है सेक्सुअल ऑर्गन स्टेजेस में। ओके नित्यश्री, ठीक है, सब कुछ बता दिया, बट एक डेफिनेशन नहीं है तुमने सही फ्रेम कर दिया। हाँ आशुतोष, व्हाट इज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन? Yes, ma'am.
Ashutosh, what is alternation of generation? Ma'am, life cycle. What is alter? इस टर्म से क्या मतलब है? मतलब मैम एप्लॉन्टिक से डिप्लॉन्टिक चेंज होना. Okay. Yes, Chinmay, Yes, ma'am. what is alternation of generation? Ma'am, that is the life cycle is divided into two halves. One will have the gametocytes, that is haploid or haplontic, and other one will Ah. have gametocyte, Phyte. sporophyte. Sporophyte. Sporophyte, that हाँ. is diplontic. अच्छा, ठीक है. तो बेसिक आइडिया सबको होगा ये क्या होता है. हाँ शिबांगी, alternation of generation. It's a type of cycle. चलो. Yes, Bhargavi. लाइफ साइकिल इन ब्रायोफाइट्स हाँ. जहाँ पे स्पोरोफाइट डिप्लॉयड और मेयोसिस में स्पोर हैप्लॉइड फॉर्म करता है. Then gametophyte haploid होता है. Then it's divided into egg and sperm भी होता है. Haploid egg and haploid sperm. Then the fuse to from zygote diploid. Then sporophyte diploid. ठीक है. तो भार्गवी मुझे ये बताओ, अगर तुम्हारा एक हायर प्लांट है, जैसे मैंगो का ट्री ले लो, तो मैंगो के ट्री में स्पोरोफिटिक जनरेशन किससे रिप्रेजेंट होगी? विच पार्ट कैन बी said to be the sporophytic part, sporophytic generation? भार्गवी, क्वेश्चन समझ आया ना? बच्चे, क्वेश्चन है कि अगर तुम्हारा एक ट्री है, मैंगो का या कोई भी ट्री है, उसमें which part can you say is representing the sporophytic generation? कौन सा पार्ट sporophytic generation को रिप्रेजेंट करता है? नहीं, चलो कोई नहीं, someone else will try. Yes, Bibhav. Bibhav. Bibhav, are you busy with something else? Yes, Srimugdha. Yes, ma'am. बताओ. मैम मैंगो के ट्री में हाँ, स्पोरोफिटिक जनरेशन किससे रिप्रेजेंट हो रही है? मैम पता नहीं. ये सबिप्शा. मैम मैंगो पर पता नहीं. मैंगो में पता नहीं, कोई बताएगा? चिन्मयी, चलो एक वाइल्ड एक गेस मार दो. चिन्मयी. Ma'am, the thalamus. थैलेमस है चिन्मयी, बट इतना स्पेसिफिक आंसर आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. चलो, so that is the whole concept of sporophytic and gametophytic generation. तुम सबने ये डेफिनेशन सही बताया है कि जो स्पोर प्रोड्यूसिंग जनरेशन होती है उसको स्पोरोफाइट कहते हैं, एंड जो गैमीट प्रोड्यूसिंग होता है उसको गैमेटोफाइट कहते हैं. So there are two terms. एक तो तुम थ्योरी पढ़ते हो, the second thing is actually वो प्लांट में दिखता कैसा है. देखो, मैं एक हायर प्लांट का एग्जांपल लेके चलती हूँ, फिर हम लोअर पे आएंगे. और हायर अभी पढ़ाने का मतलब है कि मेरा एंजियोस्पर्म में टास्क थोड़ा इजी कर देना, अब यही समझ जाओ. देखो, स्पोरोफिटिक जनरेशन वो जनरेशन होती है, जैसा तुम सबने कहा, विच इज डिप्लॉयड, है ना, एंड इट इज द जनरेशन विच विल प्रोड्यूस स्पोर्स. ठीक. एंड लेटर ऑन दीज स्पोर्स गिव राइज टू अ न्यू जनरेशन, जिसको क्या कहते हैं? गेमीटोफाइट. गेमीटोफाइट वो जनरेशन है जो क्या बनाती है? गैमीट, मेल एंड फीमेल गैमीट, ये दोनों आपस में फर्टिलाइज होते हैं, क्या बनता है? जाइगोट. जाइगोट डेवलप होके क्या बनेगा? एम्ब्रियो, एंड द एम्ब्रियो इज लेटर ऑन अगेन फॉर्मिंग अ स्पोरोफाइट. ये सबको पता होगा. अगर मैंने मैंगो का एग्जांपल लिया है, एक ट्री लिया मैंने जो तुमको ज्यादा बेटर दिखता है एज कंपेयर टू ब्रायोफाइट और एल्गी, अब उस मैंगो के ट्री में जो भी स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन के बाद बने हैं वो सब स्पोरोफिटिक जनरेशन का पार्ट है. दैट मीन्स द रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, एवरीथिंग इज अ पार्ट ऑफ स्पोरोफिटिक जनरेशन. ठीक. लेकिन क्योंकि हम जनरेशन की बात कर रहे हैं तो वी आर ओनली कंसर्न्ड विथ रिप्रोडक्शन. हमको रूट, स्टेम, लीफ से अभी सच कोई मतलब नहीं है.
तो वी आर कंसिडरिंग ऑन दी फ्लावर। तो उस फ्लावर में तुम्हारा स्पोरोफिटिक जनरेशन का रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ऑल्दो पूरा पेड़ स्पोरोफाइट ही होता है, ठीक है। अब हायर प्लांट की बात हो रही है, लोअर प्लांट में तो फ्लावर नहीं है। अब स्पोरोफिटिक जनरेशन में जिनमें फ्लावर होता है, फ्लावर में क्या होता है, यू हैव अ मेल पार्ट जिसको कहते हो स्टेमन, एंड यू हैव अ फीमेल पार्ट जिसको क्या कहते हो, पिस्टिल, राइट। स्टेमन में क्या बनता है तुम्हारा, पॉलन ग्रेन। इफ यू रिमेम्बर, पॉलन ग्रेन को ही नित्यश्री और क्या कहते हैं, व्हाट एल्स इज नेम्ड फॉर पॉलन ग्रेन? नित्यश्री तुम्हारा साउंड ही गायब है। हाँ विभव, पॉलन ग्रेन को और क्या नाम देते हैं? मैम पॉलन ग्रेन को मैम मैम एक मिनट मैम, गैमेटोसाइट। फाइट नहीं, फाइट होता है। हाँ और? सॉरी, गैमेटोफाइट, वही। हाँ हाँ आशीष, और क्या कहते हैं? मैम मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। और क्या कहते हैं? ठीक है, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, दैट इज राइट, आई विल कम टू दैट। और एक नाम दिया जाता है, और वन मोर वर्ड। हाँ यस भार्गवी, माइक्रोस्पोर। राइट, माइक्रोस्पोर। तो यही होगा आंसर चिन्मयी, माइक्रोस्पोर ही होगा ना। तो देखो ये स्पोर हायर प्लांट में ऐसा नाम आया, इसी को हम माइक्रोस्पोर कहते हैं। तो लोअर प्लांट में क्योंकि कोई पॉलन ग्रेन और पिस्टिल नहीं है, तो हमने उसमें एक ही वर्ड डाला स्पोर, क्योंकि उनमें अलग अलग स्पोर नहीं बनता है ना। अब पिस्टिल की बात लो तो पिस्टिल से क्या बनता है, मेगास्पोर, एंड मेगास्पोर से क्या बनता है तुम्हारा, इफ यू रिमेम्बर, एम्ब्रियोसैक, है ना। गॉट माय पॉइंट। तो वो एम्ब्रियोसैक को ही, इफ यू रिमेम्बर, अभी तुम लोगों ने आधे दिनों से बता दिया मुझे कि पॉलन ग्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड एज द गेमिटोफाइट। हम लोअर प्लांट में यही पढ़ते हैं कि स्पोर्स जर्मिनेट होके क्या बनाते हैं, गेमिटोफाइट। हायर प्लांट में पॉलन ग्रेन ही तुम्हारा गेमिटोफाइट है। तो गेमिटोफाइट वो कोई भी स्ट्रक्चर होता है जो गैमीट बनाएगा, ठीक है। एम्ब्रियोसैक भी तुम्हारा गेमिटोफाइट है, ये फीमेल है, ये मेल है। आई होप ये समझ आ रहा हो। अब देखो एम्ब्रियोसैक में एग है, पॉलन ग्रेन में मेल गैमीट है। ऑलवेज रिमेंबर, ये दोनों गैमीट नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को गैमीट बनाते हैं, नहीं, पॉलन ग्रेन इज नॉट अ गैमीट, इट इज अ स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स मेल गैमीट लेटर। तो वो गैमीटोफाइट है, खुद गैमीट नहीं होता है वो। तो जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो मतलब क्या होता है, कॉटिलिडन ना, कॉटिलिडन बना, कॉटिलिडन मतलब सीड के अंदर है, सीड जर्मिनेट करोगे पूरा पेड़ बन जाएगा, एंड वो पूरा पेड़ इज योर स्पोरोफिटिक जनरेशन। अगर तुम लोगों को ये चीज समझ आ गया है, इससे तुम्हें ये भी समझ आएगा कि हम क्यों कहते हैं कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। समझ आया अभी? क्योंकि देखो उनका मेजर लाइफ फॉर्म कैसा चल रहा है, 2n, ये भी 2n, ये भी 2n। हाँ बस एक टाइम आया जब ये पॉलन ग्रेन बने थे, बहुत टेम्परेरी टाइम के लिए, तब जाके हेप्लॉइड स्टेज आया था। बाकी सब देखो सब डिप्लॉयड, और मेजर प्लांट बॉडी कैसी है, स्पोरोफिटिक। तो चिन्मयी समझ आ गया? यस मैम। ओके, कोई ऐसा है जिसको ये समझ नहीं आया कंसेप्ट? हाँ भवानी, मैम फिर से समझा दीजिए शुरू से। इस मैम ये वाला खाली क्या वाला? मैम ये जल मेगास्पोर कैसे अच्छा भवानी, ठीक है चलो, आई एम क्लियरिंग दिस। मुझे ये बताओ माइक्रोस्पोर क्या होता है? पोलन ग्रेन। वेरी गुड। मेगास्पोर? मेगास्पोर मेगास्पोर कुछ नहीं होता है टेक्निकली। मेगास्पोर से, हाँ भवानी क्या बोल रहे हो? नो मैम कुछ नहीं। नहीं कुछ तो बोल रहे थे, बोलो। नो मैम। अरे कुछ तो बोल रहे थे। मेगास्पोर का क्या फेट होगा? मेगास्पोर का, माइक्रोस्पोर तो तुमने बता दिया पॉलन ग्रेन है ना, yes, तो वो तो आगे चल के मेल गैमीट बना देगा। मेगास्पोर का क्या होगा भविष्य? मैम नाम पता नहीं। हाँ मेगास्पोर से क्या बनेगा आगे? मैम फीमेल गैमेट। फीमेल गैमीट नहीं, हम बोलेंगे गैमीटोफाइट। यस मैम। है ना, गैमीट नहीं बच्चे। हाँ ये अलग बात है कि उसी गैमीटोफाइट में तुम्हारा गैमीट भी होगा, दैट्स ऑब्वियस थिंग।
तो मैंने ये कहा था, चलो वो हायर प्लांट था, लोअर प्लांट पे आती हूँ मैं तुम्हें। जैसे हम ब्रायोफाइट पढ़ रहे हैं, ब्रायोफाइट से मे बी अगर किसी को कॉम्प्लेक्स समझ नहीं आया तो वो सिंपल समझ जाएगा। तो ब्रायोफाइट में कोई फ्लावर नहीं है, कोई रूट स्टेम लीफ नहीं है, तो वो सारा पंगा ही खत्म है। अब इनमें देखो, इनमें हम बोलते हैं सबसे पहले एक मतलब लाइफ साइकिल है ना, तो दोनों स्टेजेस आएंगे, तो कोई स्टार्टिंग और एंड तो बताना वेस्ट है। तो गैमेटोफाइट होता है, ये तो कॉमन है हर प्लांट में, दोनों गैमेटोफाइट मतलब मेल एंड फीमेल, फर्टिलाइजेशन, जाइगोट, एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से तुम्हारा स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट तुम्हारा स्पोर, मियोसिस से एंड स्पोर से डेवलप होके गैमेटोफाइट। ये तुमने पढ़ा थ्योरेटिकल। एक्चुअली तुमको प्लांट में ऐसा तो वर्ड में तो दिखेगा नहीं, तो प्लांट में दीज आर द स्ट्रक्चर विच आर रिप्रेजेंटेड। जैसे मैंने कहा ना मैंगो के पेड़ में एक्चुअली व्हाट इज द स्पोरोफाइट, इट इज द रूट स्टेम लीफ एंड द फ्लावर। गैमेटोफाइट क्या है, सिर्फ पॉलन ग्रेन और एम्ब्रियो सेट। मुझे ये बताओ रितीश, ओव्यूल क्या है, स्पोरोफिटिक जनरेशन का पार्ट है या गैमेटोफाइट का? ओव्यूल बच्चे, ओव्यूल मैम गैमेटोसाइट। वेरी वेरी रॉन्ग। हाँ कौशिक, ओव्यूल क्या है, किस जनरेशन का पार्ट है? क्यों क्यों कौशिक? क्योंकि मैंने अभी गैमेटोफाइट रॉन्ग बोल दिया इसलिए? नहीं मैम, फिर हाँ, हाउ वुड यू जस्टिफाई कि वो आंसर सही है, स्पोरोफाइट है, बट क्यों? हाँ बिप्शा, ओव्यूल किसका पार्ट है? मैम स्पोरोफाइट का है इसलिए कि क्योंकि आपने बोला था कि स्पोरोफाइट में फ्लावर आता है और हर एक फ्लावर का ओव्यूल होता ही होता है, मतलब ओवरी। बट बिप्शा पॉलन ग्रेन भी तो फ्लावर में ही आता है, फिर वो कैसे गैमेटोफाइट हो गया? पर वो स्पोरोफाइटिक में आएगा। ऐसा थोड़ा ना चलेगा कि आपने बोला था इसीलिए। हाँ चिन्मय, यस मैम। क्यों स्पोरोफाइट होगा ओव्यूल? Ovules, no idea मैम। अरे हाँ विभव, 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 हाँ श्रीमुग्धा, यस मैम। क्या होगा बताओ, स्पोरोफाइट या गैमेटोफाइट? स्पोरोफाइट ही होगा हाँ क्यों होगा? क्योंकि पता नहीं। क्योंकि पता नहीं इसलिए वो स्पोरोफाइट होगा। हाँ आशीष, क्योंकि वो स्पोरोफाइट होगा, वो अभी तक वो फर्टिलाइज नहीं किया है ना वो है वो तो फर्टिलाइज के बाद ही बना है ना ओव्यूल तो। आशीष ओव्यूल तो नहीं, फर्टिलाइजेशन वो के बाद ओव्यूल हाँ सीड हो जाता है ना। क्या हो जाता है, सीड बन जाता है। नहीं आशीष तुम उसको वर्ड सही नहीं पुट कर रहे हो बच्चे। गैमेटोफाइट वो होता है जो मियोसिस के बाद बनता है, वो तुम्हारा पॉलन ग्रेन मियोसिस के बाद बने है ना, तो कोई डाउट ही नहीं है। तो अभिप्सा ये वो आंसर नहीं देना कि आपने कहा था कि वो फ्लावर है। बच्चे पॉलन ग्रेन भी फ्लावर में है, एम्ब्रियो उसके अलावा होता क्या है प्लांट में, रूट स्टेम लीफ फ्लावर, यही तो चीजें होती हैं। थिंग इज कि जो मियोसिस के बाद बनता है वो गैमेटोफाइट है, एंड जो फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है ओव्यूल इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब अभी वो सीड के पास मत जाना, दैट मीन्स वो एम्ब्रियो का पार्ट है, ठीक है, उससे डेवलप हुआ है। लेटर ऑन इसके अंदर मियोसिस होता है, तब तुम्हारा एम्ब्रियो सैक बनता है, इसलिए एम्ब्रियो सैक इज अ गैमेटोफाइट, ओव्यूल इज नॉट अ गैमेटोफाइट। ठीक, तो ये हुआ। अब देखो, अब तुम्हारे इसको मैं अगर ब्रायोफाइट में दिखाऊं तो ब्रायोफाइट में गैमेटोफाइट भी अच्छा खासा एक स्टेज दिखता है। हायर प्लांट में तो गैमेटोफाइट के नाम पे तुमको एकदम छोटा छोटा पॉलन ग्रेन है एंड यू हैव दिस काइंड ऑफ एम्ब्रियो सैक। लेकिन लोअर प्लांट में गैमेटोफाइट में तुमको अच्छा खासा एक लीफी स्टेज मिलता है एंड रूट लाइक स्टेज मिलता है, जिसको कहते हैं राइजोइड। तो उनमें वो ऐसा दिखता है। देखो एवोल्यूशन देखो, हमने ब्रायोफाइट से स्टार्ट किया, वी हैव अ वेरी मच डेवलप्ड गैमेटोफाइट। आगे गए जिम्नोस्पर्म टेरिडोफाइट में गैमेटोफाइट रिड्यूस होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है।
जब तक तुम एंजियोस्पर्म में पहुंचे, गेमेटोफाइट सिर्फ सेल जितना रह गया था, सेल सेल का स्ट्रक्चर रह गया, कोई ऑर्गन का नाम ही नहीं आया। समझ रहे हो? दिस इज द एवोल्यूशन। तो इनमें गेमेटोफाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय राइजोइड। अब इस राइजोइड एंड लीफी स्टेज, अब इस गेमेटोफाइट में कहीं पे इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे, ये क्रिप्टोगैम्स है ना, तो हिडन होंगे। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं? एंथ्रीडियम। और हायर प्लांट में क्या नाम होता है? स्टेमेन। तो इनमें नाम होता है एंथ्रीडियम। देखो, एंथर वर्ड इज फॉर मेल। देन दे हैव आर्केगोनियम, दैट इज फॉर फीमेल। आर्केगोनियम ने एग बनाया, एंथ्रीडियम ने मेल गैमीट बनाया, दोनों को वाटर मिला, फर्टिलाइजेशन अभी भी वाटर पे है, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट बन गया, एम्ब्रियो बना, एम्ब्रियो से क्या बना? एक स्पोरोफिटिक जनरेशन। देखो, सी द डिफरेंस। एक हायर प्लांट में स्पोरोफिटिक जनरेशन इतनी कॉम्प्लेक्स है, इसमें स्पोरोफिटिक जनरेशन बिल्कुल सिंपल होती है। 3 ही पार्ट होते हैं, दे हैव अ फूट, they have a seta and they have a capsule। ठीक है? एंड यहाँ पे देखो, स्पोरोफाइट क्या है? गेमेटोफाइट पे डिपेंड है। हम बोलते हैं स्पोरोफाइट एक पैरासाइट की तरह अटैच होता है गेमेटोफाइट पे फॉर वाटर एंड मिनरल्स। फूड वो अपना खुद बनाता है। अब ये कैप्सूल वो जगह है जहाँ पे मियोसिस होगी एंड स्पोर्स बनेंगे, राइट? हायर प्लांट्स में आते आते देखो, कैप्सूल की जगह किसने ले ली? एंथर ने और ओव्यूल ने। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें कैप्सूल है, कोई मेल और फीमेल सेग्रीगेशन है ही नहीं। जब ये एंथर बर्स्ट होगा, सूखेगा, स्पोर्स रिलीज होंगे। स्पोर्स जब ग्राउंड पे गिरेंगे, एक नया गेमेटोफाइट बना देंगे। दिस इज द सिंपल लाइफ साइकिल। So these were your theoretical part and this is what you actually see. आशुतोष, समझ आया? Yes, आशुतोष बताओ फिर मुझे। क्वेश्चन है, सिनर्जिड कौन सी जनरेशन का पार्ट होंगे? सिनर्जिड हैप्लोडिप्लॉइडिक। इतना कॉम्प्लेक्स कर दिया। सिंपल पूछो बच्चे, एक नाम दे रही हूँ तुमको, सिनर्जिड। बताओ सिनर्जिड कौन सी जनरेशन का पार्ट है? पोरोफिटिक या गेमेटोफिटिक? बताओ, कोई आंसर दो इस क्वेश्चन का। सिनर्जिड इज अ पार्ट ऑफ विच जनरेशन? हाँ रितीश। यस रितीश। कीजिए मैम। स्पोरोफिटिक। हाँ मैम स्पोरोफिटिक। ओके। हाँ शिवांगी, कौन सी जनरेशन का पार्ट होगा? शिवांगी, एम आई ऑडिबल? शिवांगी, श्रीमुग्धा? मैम गेमेटोफिटिक होगा, गेमेटोफिटिक होगा। कैसे कैसे चेंज हो गया अभी? कैसे रितीश? मैम ये स्पोरोफाइट होगा। हाँ श्रीमुग्धा, क्या होगा? स्पोरोफाइटिक। क्यों बच्चे स्पोरोफाइट क्यों होगा? क्योंकि ये सब मतलब जस्ट एक अरेंजमेंट है, मतलब अरेंजमेंट है गैमेट का जब तक वो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। ठीक है, तो अगर ये गैमीट का है तो गैमीट का क्या प्लॉइडी होता है श्रीमुग्धा? क्या तुमने कहा ना सिनर्जिड एक गैमीट्स के साथ अरेंजमेंट होता है जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता ना। दिस इज, तो सिनर्जिड अगर गैमीट के साथ है तो इसका क्या? मैम मुझे लगता है ये इंटरमीडिएट है उनके बीच में। नहीं, इंटरमीडिएट कुछ नहीं होता, या तो हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है। देयर इज नथिंग इंटरमीडिएट। मैं पूछ रही हूँ ये हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड है, पहले इसका आंसर दे। हाँ
डिप्लॉयड मत बोलना, वो ऑप्शन में नहीं है। नो मैम वही है हाँ डिप्लॉयड। डिप्लॉयड आंसर दे रहे हो इतन, यस मैम। अरे ऑप्शन नहीं है बच्चे। हाँ नितिश्री। डिप्लॉयड। डिप्लॉयड क्यों नितिश्री? अच्छा तुम्हारा डिप्लॉयड है। रितेश, हाँ रितेश। मैम हैप्लॉयड। क्यों रितेश, तुमने स्टार्ट मैम। किया गलत आंसर देना। हाँ क्यों हैप्लॉयड क्यों है? मैम वो मेयोसिस के बाद होता है ना। हाँ कहाँ पे होता है? मैम एम्ब्रियो सैक में होता है। एम्ब्रियो सैक में होता है। तो इतना कॉन्फिडेंटली इतना गलत आंसर देते हो तुम लोग बच्चे। अगर ये कुछ डाउट ही नहीं है तो मैंने सबसे सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि तुम्हारा थोड़ा वार्म अप रहे, श्योर हो जाओ। स्पिनर्जिड इज अ पार्ट ऑफ एम्ब्रियो सैक, और एम्ब्रियो सैक जो खुद ही हैप्लॉइड से बना है उसमें कुछ भी डिप्लॉइड कैसे हो सकता है? ट्रिप्लॉइड तो छोड़ ही दो शिवमुग्धा, तुमने उसको ट्रिप्लॉइड बना दिया। जब ये एक एम्ब्रियो सैक का पार्ट है एंड एम्ब्रियो सैक इटसेल्फ इज अ स्ट्रक्चर व्हिच इज फॉर्म्ड आफ्टर मियोसिस, तो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, वो हैप्लॉइड ही होगा। एन है, मैं एंटीपोडल पूछूंगी वो भी एन है, पोलर न्यूक्लियाई पूछूंगी ऑल्दो इट इज अ 2n, जानते हो ना पोलर न्यूक्लियाई, बट बोलोगे वो एक गैमेटोफिटिक जनरेशन का पार्ट है क्योंकि वो 2n बना है बाद में, फ्यूजन से पहले नहीं था। तो इट्स अ पार्ट ऑफ गैमेटोफिटिक जनरेशन। ठीक है चलो, ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के बेसिस पे हम आफ्टर दैट हमको ब्रायोफाइट के दो ग्रुप्स पढ़ने हैं। वी हैव लीवरवॉर्ट एंड मॉसिस। ठीक, लीवरवॉर्ट को हिपैटिकॉप्सीडा कहते हैं एंड मॉसिस को क्या कहते हैं? ब्रायोप्सीडा। ठीक, वी हैव टू स्टडी दीज टू क्लासेस। तो इनका अगर कंपैरिजन करो तो एक लीवरवॉर्ट जो मैं लेके चलती हूँ रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज योर मार्केंशिया, एंड एक इसका लेके चलते हैं फ्यूनेरिया। बहुत सारे होते हैं, स्पैग्नम है, फ्यूनेरिया है, रिक्शिया है, बहुत सारे मॉसिस हैं। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो फर्स्ट डिफरेंस इज तुम्हारा इन द ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो तुमने अभी पढ़ा है। होता क्या है, मॉसिस में जैसे तुमने स्पोरोफिटिक जनरेशन पढ़ा तो स्पोर बनता है, तो जब वो स्पोर जर्मिनेट होता है, यूजुअली जर्मिनेट होने के बाद क्या बनाना चाहिए? एक गैमेटोफाइट, है ना, इमीडिएटली। और वो गैमेटोफाइट कैसा है तुम्हारा? लीफी। लेकिन मॉसिस में देयर इज अ डेविएशन, इनमें एक स्ट्रक्चर दिखता है जिसको कहते हैं प्रोटोनीमा। तो प्रोटोनीमा को तुम एक जुवेनाइल स्टेज समझ सकते हो, तो जुवेनाइल स्टेज जिसके बाद तुम्हारा टिपिकल गैमेटोफाइट आता है। So this protonema is a precursor of the gametophytic generation in mosses. ये तुमको बायोफाइट में नहीं दिखता। अगर इसका देखो कि असली में दिखता कैसा, एकदम ब्रांचिंग पतली पतली लीव्स होती हैं, एकदम स्टॉक जैसा होता है। बाद में ये तुम्हारा कन्वर्ट होके ऐसा बनता है जो तुम पढ़ते हो। This protonema is absent in liverworts. liverworts में they have gamicups, asexual bud बनते हैं जिनको हम गैमा कहते हैं, एंड इनमें एसेक्सुअल गैमा से नहीं होता है। दे आर हेट्रोथेलिक। हेट्रोथेलिक का मतलब है कि जैसे मैं एक मार्केंशिया बनाऊं, एक मार्केंशिया में यू विल हैव द आर्केगोनियोफोर, एंड एक मार्केंशिया बनाऊं दे हैव एंथ्रीडियोफोर। ठीक, तो मेल फीमेल अलग अलग है। मॉसिस में ऐसा नहीं होता, मॉसिस में एक ही पे तुम्हारा आर्केगोनियम होगा एंड वहीं पे एंथ्रीडियम होगा। तो दे आर होमोथेलिक। ठीक है, देन स्पोरोफिटिक जनरेशन मॉसिस की ज्यादा इलैबोरेट होती है, मतलब ज्यादा डिटेल्ड और वेल एक्सप्रेस्ड होती है इन केस ऑफ मॉसिस। ठीक है, एंड देन वन पॉइंट यू कैन ऐड, ब्रायोफाइट्स हैव elaters are special cells which help in spore dispersal. जब उनके कैप्सूल में जानते हो ना मदर सेल्स होती हैं, they have spore mother cells बहुत सारी, एंड वो स्पोर मदर सेल्स में क्या होता है? मियोसिस। मियोसिस हो गया, स्पोर्स बन गए। अब इनका ये कैप्सूल का जो वॉल है वो फट जाना चाहिए, तो दैट फटना इज कॉल्ड एज डेहिसेंस। ठीक है, सूख के फट जाना। तो डेहिसेंस के बाद उस स्पोर्स को रिलीज करते हैं।
इलेटस वो सेल है जो इसके डेहिसेंस में हेल्प करते हैं, मॉइस्चर वगैरह अब्सॉर्ब करेंगे और वो उसको बर्स्ट करने में हेल्प करते हैं। So these are present in the two groups. तो ब्रायोफाइट में तुम्हारा यही है, तुमको ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ही मेन पढ़ना था, ठीक है। तो कोई डाउट है इसमें? नहीं, प्लीज ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पे श्योर हो जाना, क्योंकि जब तुम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट पढ़ते हो वहां पे भी ये आता है, वहां पे भी तुम्हारे नाम आएंगे, स्पोरोफिल, स्पोरोजेनेसिस। यस चिन्मयी? मैम दैट होमोथैलिक होमोथैलिक होता है बच्चे थैलस, क्योंकि अभी तक इनका बॉडी डिफरेंशिएटेड नहीं है। हेट्रोथैली होता है जब तुम्हारा मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स अगर अलग अलग पे हैं, तो जैसे मार्केंशिया का फिगर देखते हो तो मैंने फ्लावर बना दिया, ऐसा मार्केंशिया होता है। तो उसका एक प्लांट बॉडी पे यू हैव ओनली आर्केगोनियम, ठीक है, और एक दूसरा मार्केंशिया होता है उस पे तुम्हारा होता है एंथ्रीडियम। तो इसको Yes, कहते हैं हेट्रोथैली। हेट्रो इज डिफरेंट एंड थैलस इज देयर बॉडी। ये फ्यूनेरिया देखोगे तो उसका एक ही में एंथ्रीडियम भी होता है, आर्केगोनियम भी, एक ही प्लांट बॉडी पे। इसको कहते हैं होमोथैलिक। ओके चिन्मय? यस मैम। चलो अब आते हैं हम तुम्हारा टेरिडोफाइट पे। अब टेरिडोफाइट में देखो क्या एवोल्यूशन हुआ है। पहला चीज है कि अभी तक तुम्हारा स्पोरोफाइट के नाम पे यू आर ओनली हैविंग फूड थीटा कैप्सूल। टेरिडोफाइट्स आर ट्रू वैस्कुलर प्लांट, इनमें वैस्कुलराइजेशन हो गया है, रूट स्टेम लीफ आ गया है। और एक चीज देखोगे, इनका जो स्पोरोफाइट है अब डिपेंडेंट नहीं है तुम्हारा ऑन गैमेटोफाइट, इंडिपेंडेंट हो गया है, ठीक है। उसका और गैमेटोफाइट का अपना अपना एग्जिस्टेंस चलता है, ये तुम्हें दिखेगा। तो अब इसमें तुम एक्चुअल प्लांट देख सकते हो, जैसे मैंने हायर ट्रीज इमेजिन कराई, इसमें भी दिखेगा। तो अब जो टेरिडोफाइट्स होती है तुम्हारी, उनमें जो लीफ होती हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ लीफ। एक होती है तुम्हारी फोलिएज लीफ जो तुमको ग्रीन ग्रीन दिखती है, फोटोसिंथेसिस वाली। देयर इज वन मोर टाइप ऑफ लीफ जिसको तुम कहते हो, इट्स नॉट अ लीफ, रादर यू कैन से अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जिसको स्पोरोफिल कहते हैं। तो दीज आर लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, नाम से पता चल रहा है, जिनमें तुम्हारा क्या होता है, स्पोर बनते हैं। तो समझे, वहां पे स्पोर किस में बन रहा था, कैप्सूल में। यहाँ पे देखो एवोल्यूशन हुआ है और एक नया का नया स्ट्रक्चर बन गया। यही एवोल्यूशन आगे जाएगा और एक पूरा का पूरा फ्लावर बन जाएगा। तभी तो हम कहते हैं फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, इट हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम अ लीफ लाइक स्ट्रक्चर। चलें आगे, ना कहानी समझ आया? स्पोरोफिल मैंने बता दिया कि दीज आर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, लीफ लाइक स्ट्रक्चर, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता, विच बियर या विच फॉर्म स्पोर। अब होता क्या है, जैसे अगर मैं तुमको एक सिंपल सा फॉर्न बनाऊं टेरिडोफाइट, तो ये तो लीफ हो गई जो है सिंपल। अभी वुड नहीं बना, वो सब नहीं बनाना, अभी सिंपल प्लांट ही है। इनमें क्या होता है, स्पोरोफिल्स मतलब लीफ लाइक जो है वो ऐसे क्लस्टर में अरेंज होते हैं, ठीक है। This cluster of sporophylls is called as cone या strobilus. So strobilus is nothing, it's a cluster या aggregate of sporophyll. अब इस स्पोरोफिल में अगर मैं एक को उठा के पकड़ लूं, एक को निकालूं, उसमें तुमको बहुत सारा एक और छोटा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसको क्या कहते हैं, स्पोरेंजियम। तो एक लीफ लाइक स्पोरोफिल हुआ, उसमें स्पोरेंजियम हुआ, एंड एक्चुअली उस स्पोरेंजियम में मदर सेल होता है, ठीक है, जहाँ पे स्पोर बनता है। अब ऐसा नहीं है ना कि एक लीफ में एक ही स्पोरेंजियम हो सकता है स्पोरेंजियम भी क्लस्टर में हो। तो क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजियम इज कॉल्ड एज स्पोरस। इन टर्म्स में कंफ्यूज मत होना, स्ट्रोबिलस इज अ क्लस्टर ऑफ स्पोरोफिल। अब एक स्पोरोफिल में क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजियम इज स्पोरस। अगर इसको तुम रिलेट करो हायर प्लांट से, ये स्पोरोफिल तुम्हारा आगे चल के स्टेमेन बनेगा, ये स्पोरेंजियम आगे चल के एंथर बनेगा, एंड इसके अंदर जो स्पोर्स बनेंगे वही तुम्हारे माइक्रोस्पोर्स या माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन कहते हो। अभी मैं उसको सिर्फ स्पोर कह रही हूँ। अभिप्सा कुछ समझ आया? यस मैम।
ओवरडोज तो नहीं हुआ? नहीं। गुड। चले आगे। कोई डाउट है अभी तक इसमें? हाँ रितेश? नो। चलो गुड, डन। सो दिस इज अ वन स्टेप एवोल्यूशन फ्रॉम ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट. यू हैव अ डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर स्पोर बियरिंग. ओके चलो, अब तुम्हारा टेरिडोफाइट में जो क्वेश्चन नीट के लिए बनता है दैट इज योर हेट्रोस्पोरी. हेट्रोस्पोरी पे बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि हेट्रोस्पोरी क्या होती है. अभी तक तुम ये पढ़ रहे थे कि स्पोर बनता है और स्पोर से तुम्हारा गेमिटोफाइट बनता है. अब तुम ये देखोगे कि मेल स्पोर अलग बनता है, फीमेल स्पोर अलग बनता है. मेल स्पोर ऐसा गेमिटोफाइट बनाएगा जिसमें आगे चल के क्या होगा, तुम्हारा सिर्फ मेल गैमीट. फीमेल के फीमेल गैमिटोफाइट बनाएगा जिसमें क्या होगा, फीमेल गैमीट. दोनों अलग हो गए हैं. अभी तक तुम्हारा एक ही में चल रहे थे, सब एक ही प्लांट बॉडी का चल रहा था. तो चले आगे. अब देखो इनका ऑल्टरनेशन ऑफ, ये चीज ध्यान रखना, ये कंसेप्ट बिठा लो, धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा है. दैट्स व्हाई आई एम गोइंग सो स्लो. अभी समझ जाओ इस चीज को. सी, अब इनका ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अगर देखें, व्हाट विल हैपन. देखो थ्योरेटिकली तो वही चल रहा है, लेकिन अब इनका मैं स्पोरोफाइट, सिर्फ स्पोरोफाइट नहीं बोलूंगी, विल से कि इनका जो प्लांट बॉडी है उसमें उस स्पोरोफिटिक जनरेशन में रूट स्टेम लीफ को छोड़ दो, दे हैव स्पोरोफिल. स्पोरोफिल में क्या है, स्पोरेंजियम. एंड उस स्पोरेंजियम में क्या बन रहे हैं, स्पोर्स. स्पोरोफाइट के नाम पे अब इतनी कॉम्प्लेक्सिटी आ चुकी है. Done? अब ये स्पोर्स नीचे गिरे एंड दे विल जर्मिनेट इनटू अ गेमिटोफाइट. तो इनका जो गेमिटोफाइट होता है दैट इज अ हार्ट शेप स्ट्रक्चर, जिसको क्या नाम दिया गया है, प्रोथैलस. उनका गेमिटोफाइट कैसा था, लीफी. इनका हार्ट शेप है जिसमें तुमको एक नीचे अपाइकल नॉच दिख रहा है एंड यहाँ पे क्या दिखेंगे, राइजोइड. उनके गेमिटोफाइट में भी था ना, इनमें भी है. अंडरस्टूड. अब यहाँ पे तुम्हारे होते हैं ऑर्गन्स जिनको कहते हैं आर्केगोनियम. राइजोइड के पास होता है तुम्हारा एंथ्रीडियम. डन. टेरिडोफाइट अभी भी वाटर पे डिपेंडेंट है फर्टिलाइजेशन के लिए. इन्होंने फीमेल गैमीट बना दिया, इन्होंने मेल गैमीट बना दिया, दोनों फर्टिलाइज हो गए, जाइगोट बना, एम्ब्रियो बना. थोड़े टाइम के लिए वो स्पोरोफाइट अटैच हुआ, बट लेटर ऑन इट इज डिटैच. डिटैच होके कैसा बना, वो एक पूरा का पूरा प्लांट बना है. ठीक है, लाइक दिस. इट विल हैव अगेन, इट विल हैव स्पोरोफिल, स्पोर्स होंगे, उसके अंदर फिर से मियोसिस होगा एंड ये स्ट्रक्चर फिर बनेगा. तो कैन यू स्पॉट द डिफरेंस बिटवीन ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट? वहां स्पोरोफाइट वाज अ पैरासाइट ऑन द गेमिटोफाइट. यहाँ दोनों अलग अलग हैं. स्पोरोफाइट का डिफरेंशिएटेड बॉडी है, उसमें नहीं था. The spores are formed in a defined structure जिसको हम स्पोरोफिल कहते हैं. हाँ विभव, समझ आ रहे हैं? विभव, यस मैम. समझ आया ये? मैम फिर से बोलिए मैम, क्रैक हो रहा है. क्या फिर से बोलूं, मैंने पूछा, समझ आ रहा है? मैम क्रैक हो रहा है मैम, समझ में नहीं आ रहा. सुनाई आप मैम, आप क्या? हाँ है या वहां से. ये श्रीमुग्धा, श्रीमुग्धा, इज इट क्लियर? यस मैम. ऑडिबल है? मेरा आवाज क्लियर आ रही है? हाँ मैम आ रहे हैं. तो विभव, देयर माइट बी अ प्रॉब्लम एट योर एंड आल्सो. वहां पे देखो. अभिप्सा, एम आई ऑडिबल? मैम हाँ. नो नो मैम हाँ, सुनाई दे रहा है. ये क्लियर हुआ पॉइंट? यस मैम. ओके. विभव, आई जस्ट सेड कि यहाँ पे इनके स्पोरोफिटिक जनरेशन में तुमको नए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स मिले. स्पोरोफिल, स्पोरेंजियम, स्पोर. इनमें तुम्हारा स्पोर बना, वो स्पोर जर्मिनेट होके प्रोथैलस बनाया. प्रोथैलस इज द नेम ऑफ द गेमिटोफिटिक जनरेशन. स्ट्रक्चर का नाम है. जैसे अब ये नाम आगे बढ़ता ही जाएगा, आगे चल के इसका नाम पॉलन ग्रेन बनेगा, एम्ब्रियो सैक बनेगा. टेरिडोफाइट के लिए इट इज प्रोथैलस. अब इस प्रोथैलस में
तुम्हारा दोनों चीज है, मेल एंड फीमेल, तो इसको कहते हैं होमोस्पोरी, कि तुम्हारा मेल एंड फीमेल में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही टाइप का स्पोर होता है। ठीक, मैंने कहा टेरिडोफाइट में द इम्पोर्टेंट थिंग इज हेट्रोस्पोरी, मतलब कुछ टेरिडोफाइट्स हैं जैसे सिलाजिनेला, साल्विनिया, इनमें क्या होता है, दे हैव इवॉल्व्ड अ बिट, हम बोलते हैं हेट्रोस्पोरी इज अ प्रिकर्सर टू द एवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिट। सीड हैबिट के लिए एक प्रिकर्सर था। कैसे? देखो यूजुअली होता क्या है कि हमारे पास मेल एंड फीमेल अलग नहीं है, लेकिन सिलाजिनेला और साल्विनिया में क्या होता है, दे प्रोड्यूस टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स। इनके अंदर दो अलग अलग कोन होते हैं। एक कोन होता है जिसमें तुम्हारा सिर्फ मेल स्पोर बनता है। मेल स्पोर यहीं से नाम शुरू होगा माइक्रोस्पोर का। तो इट्स अ मेल कोन, मेल स्ट्रोबिलस है। जब ये ग्राउंड पे आएगा तो ये एक ऐसा प्रोथैलस बनाएगा जिसमें सिर्फ क्या होगा, एंथ्रीडियम, मेल है ना, तो सिर्फ एक ऐसा गैमीटोफाइट बनाएगा जो मेल गैमीट्स बनाएगा। सिमिलरली एक ऐसा कोन है जिसमें सिर्फ फीमेल बनता है, तो ये जब नीचे ग्राउंड पे आएगा तो ये एक प्रोथैलस बनाएगा जिसमें क्या होगा, सिर्फ आर्केगोनियम। समझ रहे हो? तो इसको हेट्रोस्पोरी कहते हैं। मेल स्पोर अलग होता है, फीमेल स्पोर अलग होता है। मीनवाइल जब एंथ्रीडियम ने गैमीट बना दिया, दिस गैमीट इज ट्रांसफर्ड टू द फीमेल प्रोथैलस, फर्टिलाइजेशन हुआ एंड वहां पे डेवलपमेंट होता है। ठीक है, लेटर ऑन। तो बोलते हैं ये सीड हैबिट का प्रिकर्सर था कि फर्टिलाइजेशन और जो जाइगोट है उसका डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है, फीमेल गैमीटोफाइट में। हर जगह यही होता है, हायर प्लांट्स में जाओ तो डेवलपमेंट कहाँ होती है, एम्ब्रियो सैक में। So this is the precursor of seed habit. So is there any doubt? I hope नहीं। हाँ कौशिक, समझ आ गया? हाँ Okay. Yes भार्गवी, Yes, ma'am. क्लियर है? Yes, ma'am. Okay. किसी को डाउट है, you can raise your hand and ask. नहीं, चलो अब तुम्हें बस एक स्टेप और आगे जाना है एवोल्यूशन में, जिम्नोस्पर्म, क्योंकि एंजियोस्पर्म तुम बचपन से पढ़ रहे हो ना, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, वो बहुत बार पढ़ा है, वो तुमको तुम्हारा बाएं हाथ का खेल है, वो तुम मुझे समझाओगे जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी। देखो जिम्नोस्पर्म तुम्हारे फर्स्ट स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं। स्पर्मा इज योर सीड, so these are the first seed bearing plants। अभी भी लेकिन इनमें फ्लावर नहीं है, फ्लावर नहीं है और क्या नहीं है, ओवरी नहीं है। बाकी इनमें ओव्यूल बन गया है, पॉलन ग्रेन बनने लग गए हैं, सब कुछ आ गया है। ठीक है, बट दे डोंट हैव दीज स्ट्रक्चर्स नाउ। अब तुम्हारा जिम्नोस्पर्म आइडियली तुम तीन ग्रुप पढ़ते हो। एक होता है साइकेडोफाइटा, कॉनिफेरोफाइटा या कॉनिफेरेल्स या नेटेल्स, तीन ग्रुप्स होते हैं। एनसीईआरटी सिर्फ ये दो बताती है। नेटेल मैं इसलिए बता रही हूँ, दीज आर द इवॉल्व्ड जिम्नोस्पर्म्स। कभी तुम्हारा क्वेश्चन आया एंड उस क्वेश्चन में आएगा कि ऑल द जिम्नोस्पर्म्स शो दिस प्रॉपर्टी एक्सेप्ट, तो लुक फॉर द ऑप्शन जिसमें नेटम होगा ना, वो तुम्हारा एक्सेप्शन होगा। ये थोड़ा अलग होते हैं, जैसे में तुमको क्या नहीं मिलता, यू डोंट हैव वेसल, है ना, जाइलम तो आ गया है बट वेसल नहीं आया है, कंपेनियन सेल भी नहीं आया है। नेटम इज एन एक्सेप्शन, मतलब नेटेल इज द ग्रुप। इसका एग्जांपल है नेटम, एफिड्रा, एंड एक और प्लांट होता है जिसको कहते हैं वेलविस्टिया। ठीक है, तो कभी एक्सेप्शन आया ना क्वेश्चन में, इन्हीं तीनों ऑप्शंस में से देखना एक होगा, दैट इज द डेविएशन फ्रॉम अ टिपिकल जिम्नोस्पर्म। लेकिन अभी भी इनमें फ्रूट नहीं बनता, सिर्फ सीड है, नेकेड सीड, इसलिए इनको जिम्नोस्पर्म में डाला हुआ है। कॉनिफेरोफाइटा में आता है तुम्हारा पाइनस, साइकेडोफाइटा में साइकस। तुमको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इन दो प्लांट्स में
कंपैरिजन करना है। तो पहले आते हैं, क्योंकि हम रिप्रोडक्शन फॉलो कर रहे हैं, तो वी विल सी द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स। अब जैसे साइकस और पाइनस हैं। साइकस तुम्हारा एक पाम ट्री की तरह लगता है जिसमें ब्रांचिंग नहीं होती है। पाइनस इज योर क्रिसमस ट्री, ऐसा ऐसा। तो देयर इज नो ब्रांचिंग, देयर इज ब्रांचिंग। इट्स डायोशियस, मतलब यूनिसेक्सुअल होता है, एक प्लांट से एक ही गैमेटोफाइट स्टेज आती है। इट्स बाइसेक्सुअल, मोनोशियस होता है। ठीक है। साइकस का जो रूट है, इट हैज टू टाइप्स ऑफ रूट। एक तुम्हारा नॉर्मल रूट होता है टैप रूट जैसा, एक होता है तुम्हारा कोरलॉइड रूट। कोरलॉइड रूट जैसे तुम जिंजर देखते हो ना, वैसे ऐसे 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 बीडेड स्ट्रक्चर होता है। तो इस कोरलॉइड रूट में वो बीजीएस को होल्ड करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कराते हैं। पाइनस में भी ऐसा होता है, एक तो उनका टैप रूट, या कुछ केसेस में, कुछ स्पीशीज में तुमको एडवेंटिशियस भी दिखता है। प्लस दे हैव रूट्स विच हैज माइकोराइजल एसोसिएशन, माइकोराइजा बनाते हैं। जानते हो ना माइकोराइजा? शिवांगी, माइकोराइजा का क्या काम होता है? What is the function of mycorrhiza? Shivangi, I think, is not audible. Yes, Ashish. Ashish. Ma'am. What is the function of mycorrhiza? Significance. Mycorrhiza. हाँ श्रीमुग्धा। मैम वही नाइट्रोजन फिक्सेशन? नहीं, बिल्कुल नहीं, नाइट्रोजन का काम नहीं होता इनका। हाँ भवानी। मैम हायर प्लांट्स में होता है, हायर प्लांट्स के रूट में। हाँ, उसका काम क्या होता है? मैम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। हाँ, वो तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाता है, बट काम क्या होता है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? हाँ विभव, ठीक है, ये बनता है तुम्हारा फंगस और रूट के साथ पाइनस के, बट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फंजाई? चलो पाइनस का तो समझ आ गया, वो फूड बना के देगा। फंजाई का क्या सिग्निफिकेंस होगा? हाँ विभव। मैम। हाँ, माइकोराइजा में फंजाई का क्या रोल होता है? मैम वो न्यूट्रिशन देगा मैम, शायद हाँ, ग्रोथ के लिए। कौन सा न्यूट्रिशन देगा? कौन सा? जैसे बीजीए तो तुमने बोल दिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, माइकोराइजा क्या फिक्सेशन कराता है? चलो मैं बता रही हूँ, फॉस्फोरस कराता है। मोस्ट ऑफ द टाइम तुम उसको नाइट्रोजन ही मान के चलते हो, नहीं, माइकोराइजा इज स्पेसिफिक फॉर वाटर एंड फॉस्फोरस अब्जॉर्प्शन, नॉट नाइट्रोजन। ठीक है, चलो अब नाउ व्हाट हैपेंस कि तुम्हारा अभी जिम्नोस्पर्म्स में ये क्या होते हैं? हेटेरोस्पोरस, ऑब्वियसली इनमें मेल एंड फीमेल वाला क्लियर कट अलग हो गया है। तो जैसे साइकस है, साइकस में एक पेड़ पे या तो वो मेल होता है या तो वो फीमेल होता है, दैट इज योर डाइशियस ना। पाइनस में क्या होता है? पाइनस में यू हैव कोन, जैसे मैंने बताया था ना, मेल कोन फीमेल। पाइनस का देखा भी होगा, वुडी स्ट्रक्चर होता है, कई लोगों के घर में इट्स प्लेस्ड एज एन ऑर्नामेंटल, उसका जो स्पोरोफिल होता है। तो जैसे ये पेड़ है तो यूजुअली ऐसा पेड़ नहीं होता है, मैं बस बना रही हूँ रिप्रेजेंटेशन। यूजुअली जो ऊपर की तरफ होता है ना, दैट इज योर फीमेल कोन, फीमेल कोन। नीचे की तरफ तुम्हारा मेल कोन होता है। ठीक है, सो बेसिकली व्हाट हैपेंस, अगर मैं इसका तुम्हें डिटेल दिखाऊं तो जैसे ये तुम्हारा क्या है? कोन है, बहुत सारे स्पोरोफिल्स आपस में क्लस्टर होके कोन बनाया हुआ है। ठीक है, अब इस कोन का मैं अगर सेक्शन काटूं हॉरिजॉन्टल तो तुमको ऐसा दिखेगा, जैसे तुमने बीच से एक पाइनएप्पल, ये एक क्या है? दिस इज योर स्पोरोफिल। एक स्पोरोफिल है ना, तभी तो पूरा कोन है। अब एक स्पोरोफिल में यू कैन सी देयर आर व्हाट? स्पोरेंजियम। अब दिस इज कॉल्ड एज, क्योंकि मेल है तो मेल के लिए
दिस इज अ माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल में क्या होगा? माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोरेंजियम में क्या बनेंगे? माइक्रोस्पोर्स। यहाँ पे तुम पॉलन ग्रेन नाम ले सकते हो। बन गया पॉलन ग्रेन। अभी पॉलन ग्रेन में क्या होगा? माइटोसिस, जिससे क्या बनेगा? एक जनरेटिव सेल और एक ट्यूब न्यूक्लियाई। ठीक है, इनमें तुम्हारा वो जनरेटिव वेजिटेटिव वाला लॉजिक नहीं चलता, दे हैव अ ट्यूब न्यूक्लियाई। समझ गए? तो हमारा मेल गैमेटोफाइट इज रेडी। फीमेल कोन पे आ जाओ। फीमेल भी बाहर से देखने में ऐसा ही लगता है, उसमें भी तुमको एक बीच में ये डंडा सा रैशेस दिखता है। इनमें क्या होता है, जो ये स्पोरोफिल है ना, अब फीमेल में नाम चेंज हो जाएगा। फीमेल में क्या नाम आएगा? मेगास्पोरोफिल। तो मेगास्पोरोफिल, अब इसके अंदर होता है मेगास्पोरेंजियम। इसी मेगास्पोरेंजियम को क्या कहते हैं? ओव्यूल। ठीक है, अब इस ओव्यूल में क्या होगा? मेगास्पोर मदर सेल, है ना। मेगास्पोर मदर सेल में क्या होगा? मियोसिस। याद आया? ये 12th का है पूरा टॉपिक। मियोसिस से क्या बन गए? मेगास्पोर्स। अब देखो यहाँ पे यूनिक चीज क्या होती है, इन मेगास्पोर्स में से एक मेगास्पोर क्या बनाने चला जाएगा? एम्ब्रियो सैक। ठीक, हायर प्लांट में 3 मेगास्पोर का क्या होता है अभिक्षा? हायर प्लांट में 4 में से 3 मेगास्पोर का क्या होता है? मैम 3 डीजेनरेटिव मतलब डीजेनरेट कर जाते हैं। राइट, गुड गुड गुड, 3 डीजेनरेट कर जाते हैं। यहाँ पे वो तीनों डीजेनरेट नहीं करते हैं, उनका क्या होता है? दे फॉर्म आर्केगोनियम। समझ आ गया? वो तीनों ओव्यूल के ही उधर आर्केगोनियम नाम का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं। समझ आया? तो ऐसे फ्लो चार्ट में करना इजी रहेगा, समझ आ जाएगा। 3 से आर्केगोनियम। तो तुम्हारा एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है कि द मेगास्पोर एनक्लोज्ड विद इन द मेगास्पोरेंजियम डेवलप्स इनटू अ फीमेल गैमेटोफाइट दैट हैज आर्केगोनिया। तो समझ आया? बच्चे पूछते हैं कि आर्केगोनिया कहाँ से आया? आर्केगोनिया इसी मेगास्पोर सेल से बना है। ठीक है, तो ये तुम्हारा पूरा बन गया गैमेटोफाइट। हाँ, ओव्यूल बाहर है, ओव्यूल तो सीड बनेगा ना, ओव्यूल तो तुम्हारा सीड बनेगा आगे चल के। देन यू हैव द गैमेटोफाइट, एंड उस गैमेटोफाइट में यू हैव द एग, एंड एग के साथ क्या है? आर्केगोनिया। समझ आ गया? अब कुछ नहीं है, पॉलिनेशन हुआ। पॉलिनेशन से तुम्हारा ये पॉलन ग्रेन आया, विंड पॉलिनेशन होती है ना जिम्नोस्पर्म में, यहाँ पहुंच गया एम्ब्रियो सैक के पास। यहाँ ओव्यूल है, उस ओव्यूल का भी वैसा ही स्ट्रक्चर है, उसके पास भी माइक्रोपाइल है, चलाजा है। तो पॉलन ग्रेन का जो ये ट्यूब न्यूक्लियाई होता है वो क्या करेगा? नाम से समझ आ रहा है, पॉलन ट्यूब बनाएगा। पॉलन ट्यूब एंटर हुआ एम्ब्रियो सैक में, जनरेटिव न्यूक्लियस से तुम्हारा गैमीट बना, फर्टिलाइजेशन हुआ, अगेन तुम्हारा डेवलपमेंट स्टार्ट होगा एंड ओव्यूल बनेगा, ओव्यूल से सीड बनेगा। आई होप ये अभी क्लियर हो। बताओ इसमें कोई डाउट है क्या? खत्म हो गया है पूरा टॉपिक। ये सिर्फ समझने का, यही इनका रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर इवोल्यूशन समझने का होता है, बाकी बहुत सिंपल है। तो विभव समझ आया? यस मैम। ओके, हाँ रितेश। यस मैम। चिन्मय, हाँ बताओ। Ma'am, after archegonia, can you explain once again? Okay, I was saying, हमारा अगर ये एक स्पोरोफिल है, मैंने कहा ना एक स्पोरोफिल के टर्मिनल एंड पे यहाँ पे क्या है? ओव्यूल, राइट? Yes, तो ma'am. ओव्यूल में तुम्हारा ये गैमेटोफाइट बना था। मेगास्पोर आई सेड ना, आउट ऑफ दोस 4 मेगास्पोर, एक मेगास्पोर तुम्हारा गैमेटोफाइट बनाने चला गया है, मतलब एम्ब्रियो सैक। बाकी जो 3 मेगास्पोर बचे, दे फॉर्म द आर्केगोनियम। Archegonium. ठीक है, तो तुम्हारा एक गैमेटोफाइट में यू हैव आर्केगोनिया। ठीक है, आर्केगोनिया, एंड दिस इज द गैमेटोफाइट जिसमें यू हैव द फीमेल गैमीट। मैंने ये कहा बच्चे कि तुम्हारा पॉलन ग्रेन वहां पे पड़ा हुआ है स्पोरेंजियम में,
पॉलन ग्रेन्स तुम्हारे क्या स्टेज पे हैं? दे हैव 2 न्यूक्लियाई ना, दे हैव अ जनरेटिव न्यूक्लियाई एंड अ ट्यूब न्यूक्लियाई। आई Yes, सेड ma'am. कि विंड पॉलिनेशन होगा, विंड पॉलिनेशन से दीज पॉलन ग्रेन्स विल बी टेकन नियर द ओव्यूल, ओव्यूल से वो एंट्री करेंगे। यहाँ इनका ओव्यूल भी ऐसा ही होता है, उसको ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल कहते हैं जिम्नोस्पर्म्स में। इनका भी एक चलाजा और एक माइक्रोपाइल होता है। पॉलन ट्यूब एंटर हुआ तुम्हारा माइक्रोपाइलर एंड से, एग होगा, आर्केगोनियम के अंदर एग है, फर्टिलाइजेशन हुआ, इट विल फॉर्म द जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से तुम्हारा अल्टीमेटली कोटिलिडन बनेगा। मीनवाइल ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हो जाएगा? सीड। तो आई वाज जस्ट सेइंग कि यही चीज होगा उसमें, सीड एक्सपोज्ड होगा क्योंकि ओवरी नहीं है। हायर प्लांट में माइक्रोस्पोरोफिल के बजाय तुम्हारा एक ओवरी बन गया था, मेगास्पोरोफिल के बजाय। ओवरी के अंदर सब कुछ हो रहा था, तुमको फ्रूट भी मिला, इसमें देयर इज नो फ्रूट। ओके, तो नाउ फॉर योर नेक्स्ट क्लास तुम लोग मेरे ये करके आओगे, यू विल स्टडी एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म्स में जो तुम्हारा रिप्रोडक्शन है ना, यू हैव योर डबल फर्टिलाइजेशन। कम प्रिपेयर्ड विद डबल फर्टिलाइजेशन। तुम मुझे बताओगे कि ये होता क्या है। जस्ट जब दोबारा ये यूनिट पढ़ो ना, मैंने कहा रिप्रोडक्शन के कंटेक्स्ट में एवोल्यूशन पढ़ो। तो स्टार्टिंग फ्रॉम ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म आते आते एकदम पीक पे चला गया है, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग, जिम्नोस्पर्म में ये ऐड कर लेना कि उनका जो एंडोस्पर्म होता है ना, which gives nourishment to the developing embryo, एंडोस्पर्म उनका हेप्लॉइड होता है। दैट्स अ वेरी क्रूशियल पॉइंट, क्योंकि एंडोस्पर्म किससे बना होता है? आर्केगोनियम के सेल से, और आर्केगोनियम कैसा है? हेप्लॉइड। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म कैसा होता है? इट्स ट्रिप्लॉइड। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों के बीच में, ठीक है। तो कल तुम लोग करके आओगे, दिस इज योर असाइनमेंट, कम प्रिपेयर्ड विद डबल फर्टिलाइजेशन। नाउ योर टास्क इज, जो आज हमने ये स्पोरोफिल पढ़ा ना कि यू हैव अ मेगास्पोरोफिल, माइक्रोस्पोरोफिल, गिव द कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द स्पोरोफिटिक जनरेशन इन इन लोअर प्लांट एंड हायर प्लांट। मतलब जब तुम प्लांट में आ गए हो, मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारा एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर हो गया है, फ्लावर। तो तुम मुझे ये बताओगे इस फ्लावर में what is a microsporophyll, what is a microsporangium, what is a microspore. Similarly, megasporophyll, megasporangium and megaspore. ये तुम्हारा कल का होमवर्क है, फिनिश करके आओगे, and along with this life cycle. Okay.